एएनसी इंडिया के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आइए आज आपको लेकर के चलता हूं मनोरंजन की दुनिया में। जी हाँ, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में। और यहाँ पर आपके चहेते सितारे शाहिद कपूर और कृति सेनन कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म जो कि 9 फरवरी को वैलेंटाइन के अवसर पर जो है रिलीज होनी है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जी हाँ, ये फिल्म है शाहिद कपूर और कृति सेनन की, जिसे निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। और जियो स्टूडियो की ये फिल्म है जो कि 9 फरवरी को रिलीज होनी है। प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर शाहिद कपूर कृति सेनन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करने वाले हैं और उसमें उनकी जो दिलचस्प बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आइए मेरे साथ चलिए इस इंपीरियल होटल में और मिलिए अपने चहेते सितारे शाहिद कपूर और कृति सेनन से और सुनिए और आनंद लीजिए उनकी दिलचस्प बातों का, जो कि उनकी फिल्म में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की जो खास बातचीत है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इस फिल्म में कृति सेनन एक रोबोट का अभिनय कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आप रोबोट के ऊपर देख चुके हैं, लेकिन आज एआई का जमाना है और इस एआई के जमाने में कितनी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है वो सब इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। Thank you so much for joining us here. Both of you look absolutely great. What a pleasure to have you here with us, and what a wonderful job done. Well, we do have a special request. Before we move any further, all of us want to have a look at the groomiest song of the year 2024, none other than the title track, Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. So shall we please? You want to see the song now? Okay, we'll say hi later. Firstly, hi everyone. दिल्ली आके मुझे बहुत ऐसी घर वाली फील आती है, जबकि मेरे पेरेंट्स सब ज़्यादा मुंबई में रहते हैं. But this is the city I've been born and brought up in and seen most of my life here in this city, and it's always amazing to be back in Delhi. The warmth of the people, the big roads, the amazing food, I miss it all. So it's always very lovely to see you all here and to meet you guys. I hope you all loved our trailer, our songs, and I hope you guys also love the film. Hi. Hello. उसने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इतनी सारी प्यारी बातें बोली। आप दिल्ली के दामाद हैं, लेकिन हमें पता ये मैं पहला दामाद हूँ जो पैदा भी दिल्ली में हुआ था, लेकिन मुझे दामाद बना दिया गया है यार। मैं यही पैदा हुआ था, मैं यही का चला उस टाइम। It's always amazing to be in Delhi. I love Delhi. I love my family here, and you know, I just have a lot of memories. A lot of my schooling was in Delhi. So very happy to be here to talk to all of you and interact with you all. And yeah, let's start. Well, yes, let's go ahead. Thank you so much once again. It is truly a pleasure to have you here with us. I request both of you to have a seat. Meanwhile, well, it had been long since the fans and everybody have been waiting to see Shahid back in the romantic genre, and it's about time. And Kriti, it's always a delight to see you on screen, and people are ready to be smitten by you once again. So once again, congratulations on the beautiful job done. Here we are eager to know more and more on the film and your character. So I'll start with you, Shahid. So well, yes, it is after a very long time that you're back in romance. What clicked with you for this role, for you to say yes to it? So I was also wondering why I've not done a love story for a long time, and अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पेस की फिल्में आपके पास बैक टू बैक आ जाती हैं, अच्छी लग जाती हैं तो आप कर लेते हो. But I want to change it up. I want to do something different. और the word different is defined by this film because इसका सब्जेक्ट इतना अलग है कि मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे पास इस तरह की स्क्रिप्ट आएगी. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की स्क्रिप्ट को पसंद करूँगा और उसे कर लूँगा. So it is a very fresh, different concept for me, and I'm sure it was different, very different for Kriti. And
आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बट ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, इसके अंदर गाने हैं, इसके अंदर बड़ी सारी कॉमेडी है, फैमिली है, लड़का लड़की है, लेकिन इट्स डिफरेंट। और यही मुझे बानस फिल्म के बारे में इतनी अच्छी लगी कि वो हर चीज़ वो कर रही है जो आपकी इस जॉनर से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन एवरीथिंग फ्लिप ऑन इट्स हेड, यू नो, जैसा आपको लगता था वैसा होगा, एवरीथिंग इज डिफरेंट, यू नो। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक कैरेक्टर को चुनते हो और उस कैरेक्टर के बिहेवियर से पूरी फिल्म फ्लिप हो जाती है, यू नो। एंड आई थिंक दैट कैरेक्टर इज सिफ्रा's कैरेक्टर बिकॉज शी इज अ रोबोट। Thank you so much, Shahid. Lovely to hear that. And yes, we are already sure that it's going to be one family at Taylor, one big blockbuster. And as you said, it is Sipra's role which definitely adds a lot of change and freshness to this movie. So Kriti, you're already perfect. It must not have been really tough for you to play a robot, but did it occur naturally to you, or did it take any extra sort of prep for you? To be a robot would not occur naturally to me ever, because I'm not. I'm completely opposite of that. I am extremely clumsy as a person. I can fall on a flat surface in flats. I am a messy person. I am from Delhi, so I can be loud. We all relate to that. So no, it's very away from me. I'm more impulsive as a person. I really like reacting. Even when I'm acting, I love it when I can just, flow and just feed off my co-actors' energy and, improvise and all of that, which everything I cannot do. And when you have such a good actor in front of you like Shahid, you just feel like, oh my God, I wish that he's just great so much as an actor. I wish मैं और कर सकती, लेकिन आप रोबोट हो तो आप एक बाउंड्री है जितना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. But that's the challenge, So it was interesting to play a robot who is so human-like, so close to being a human being कि Aryan जो कि एक robotics engineer है, he falls in love with her, and so obviously she gives the feeling of being an absolute human, but then she's not. So that fine line was there, and that was what was exciting for me. And I think हर बार हम जब take कर रहे होते तो मैं सोचती थी यार ये ज़्यादा robotic तो नहीं हो रहा है, यार ये ज़्यादा human तो नहीं हो रहा है. So वो खुद को question करना constantly, वो balance find करना was I think the exciting bit. Sifra in the beginning to me was a little suffocating because मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ बांध दी किसी ने और अभी बोला कि acting करो. But as we started flowing, I would actually hope all of you, while you watch it, even when you enter the theatre knowing that she's a robot, when you watch these two characters, the love story, it's just so, I don't know, it's just so lovely, and you feel like you want them to be together, that I want you to forget that she's a robot. Just saying. It's like a bad Chinese that's better than the Chinese that you have at the वो restaurant. बहुत बड़ी डील है, मोमोज बहुत बड़ी डील है ना, है कि नहीं बड़ी डील है? है ना, लड़कियां तो सब लोग ऐसे बोल रही हैं, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? I was, when I went to Mumbai, I was like, momos नहीं बनते? So that meme that's there of every girl in Mumbai, I was that meme. And I also love New Friends Colony, Alpek Sharma. I think that is something जो मैं अपनी मैनेजर को हमेशा बोलती हूँ, हम यहाँ हैं और मैं प्रमोशन के लिए आती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाने का टाइम ही नहीं होता मेरे पास. So that's something that I like having every time I'm here, and I've been craving for those. So probably in the evening I might have it. Thank you so much, guys. I hope you go ahead with momos and shawarmas and so much more. Chemistry is here with us at the moment itself. And I think that chemistry, your bond together, the trailer and so much more has left everybody intrigued. So I think we should go ahead and without any further ado, let us start with the questions. आपको हाथ उठाना, माइक आपके पास आ जाएगा. ठीक है, सुन वेट करो सेकंड. हेलो, हाय शाहिद, हाय कृति. ट्रेलर बहुत सामने नीचे जमीन पर. आप अपने फोन के पीछे छुपे हुए हैं तो कैसे दिखेगा नीचे नीचे? तो ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा, गाना भी सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे. शाहिद भाई, एक सवाल ये है कि जो इसका प्लॉट है मूवी का, काफ़ी लोग आपके ट्रेलर पे भी कमेंट मैंने पढ़ा है, काफ़ी उसको कंपेयर कर रहे हैं या ये कह रहे थे कि उसको कह रहे हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ अ डेली सोप दैट इज टू ऑन एयर. सो आप सबकी बहू रजनी का है, ये ऐसे ही नाम है उसका. हाँ, ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है. उसमें वो रोबोट थी. हाँ, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है. तो कुछ उसमें से इंस्पिरेशन वगैरह लिया
नहीं उसमें बेस्ड नहीं है, बट ये एक सिमिलरिटी है, बट ये AI रोबोट है जिनका बिहेवियर ऐसा है कि कह ही नहीं सकते कि वो इंसान से अलग है। तो वो एक जो आई थिंक आज की तारीख में टेक और AI जो अब आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा एक कदम आगे गए हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा बॉस तो कैसा होगा कि आपको सिफ्रा जैसी रोबोट मिल सकती है जो कस्टमाइज होगी, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और क्या ये लव हो सकता है, क्या कि लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही होना चाहिए या हो सकता है, इसी को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। डर लग रहा है ये हो क्या रहा है। But yeah, there are, I mean, like you said, there are AI-generated news readers which are there, you know. So it is slowly kind of taking over certain things. कुछ चीज़ें हम मशीन से भी पहले नहीं कराते थे, खुद करते थे, अभी सब चीज़ों के लिए मशीन्स भी हैं. We are talking to Siri. There is a robot, Sophia, that's got in residency in Saudi. So कहीं तो हम जा रहे हैं, कितना तक जाएंगे और कितनी जल्दी जाएंगे ये नहीं पता. शायद एक्चुअली जब हमने फिल्म बनानी शुरू की थी तो हम भी सोच रहे थे कि हम इस रोबोट को कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस दिखाएं, और हमें ऐसा लगा कि जो सबसे नई चीज़ है जो इन द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ टेक आई है, दैट इज AI। कि आप किसी चीज़ को इतना रियलिस्टिकली सिमुलेट कर सकते हो कि पता ही नहीं चले कि वो इंसान है कि नहीं है। तो वीडियो पे तो हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं, राइट, वी ऑलरेडी सीइंग सिमुलेशंस जहाँ पे लोगों के फेसेस चेंज कर दिए जाते हैं, केसेस हो रहे हैं और सो उसको एक कदम आगे लेके गए। और हमने ये भी सवाल पूछा है कि अगर इतनी एडवांस रोबोट हिंदुस्तानी फैमिली के सामने आ जाए तो किस तरह की कियोस किस तरह का क्रिएट हो सकता है, बिकॉज फैमिली उसे समझे वो अलग बात है, लेकिन रोबोट की फैमिली को समझ पाएगी या नहीं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो ज़्यादा डिफिकल्ट है इस फिल्म के अंदर। बट सी पिछले एक साल में जब हमने फिल्म बनाई, सडनली ChatGPT के बारे में इतनी सारी बातें होने लगी, AI बिकेम वेरी वेरी कॉमन आजकल, मतलब हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल AI को लेकर आता ही है। सो हमने एक्चुअली ये 1-1.5 साल पहले थोड़ा प्रीएम्पली शुरू किया था कि यार बनाते हैं, आई थिंक फिल्म देखते हुए लोग समझ जाएंगे, लेकिन वाइल वी वर मेकिंग द फिल्म ऑलरेडी उसकी बातचीत फैलने लगी। तो उससे यही फीलिंग आती है कि शायद हमें जितना लगता है कि जितने टाइम बाद हमारी लाइफ में एंटर करेगा, ये शायद उससे काफ़ी जल्दी ही हमारी लाइफ में एंटर कर जाएगा, कुछ 1 साल में ही तो उसकी बात शुरू हुई है, एंड ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट इट सो मच, so it's relevant and it is possibly in the near future. Hello. Hi Shahid, hi Kriti. This is Vartika from Live Hindustan. मेरा सवाल ये है कि आप लोग ने बताया था कि हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तब आप लोग ने बहुत सारे सवाल किए थे, आप लोगों को उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको मिले और आपने बहुत कुछ जाना है इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई रोबोट आ जाता है, उसकी किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और किस चीज़ आपको और क्या चीज़ उसकी पसंद है? मैं अपनी फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा तो कितने भी टेढ़े सवाल पूछ के निकालने की कोशिश करें, यही तो मेरी फिल्म के अंदर है, कैसे बता दूं? मतलब अगर रियल लाइफ में आ गया तो फिर क्या होगा? मेरे मजे आएंगे। तुम्हें ना एक सिद्धू चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, यार और नहीं, शादी के बाद भी लोग सिद्धू डिमांड कर सकते हैं। अब ऐसे सबके सामने थोड़ी मैं बोल रही हूँ, तो अगर सबके सामने बोल दिया आपने, बट तो अगर एकदम कस्टमाइज लड़का मिले जिसकी कोई टंटे नहीं हो और जो आपको चाहिए सब कुछ हो उसमें, would you want to go? Yes, of course, but You answered my your own question right now. yes, बस उसकी कौन सी क्वालिटी है जो नहीं अच्छी लगेगी? वो सारी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं यार, कस्टमाइजेशन यही तो होता है, अपग्रेड तो सॉफ्टवेयर। आप तो रोबोट है ना, आप तो भी डाइव करेंगे। मैं रोबोट फिल्म के अंदर बताइए। ओके, थैंक यू। Hi Kriti, hi Shahid, over here. Hi. My name is Kriti. Kriti also runs. My question is, पहले ज़माने में जो रोबोटिक फिल्म बनती थी उसमें रोबोट्स को बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दिखाते थे, they were quite expressionless. बहुत साल पहले स्मॉल वंडर नाम का एक प्रोग्राम आता था, उसमें भी जो बनती थी विक्की बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी।
However, इस फिल्म में आप एक्सप्रेशंस भी दे रहे हो और आप बहुत ह्यूमनली लग रहे हो, तो क्या was it is it something that you feel that robots, if tomorrow robots are born as humans or they have a human tendency, do you think that they will have all kinds of feelings like humans have? पहले के ज़माने में ना लैंडलाइन आईएसडी अगर करना होता था तो आवाज़ भी नहीं आती थी। आज आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो दूर कहीं बैठे किसी से, तो ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो और तेज़ी से बढ़ रही है। सो ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग दिस फिल्म नाउ एंड वी गॉन फ्यू स्टेप्स अहेड, वी मेड इट ऑन एआई। सो जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई इज ऑल्सो लाइक सेल्फ अपग्रेडिंग, सेल्फ लर्निंग। So yeah, this robot is way more closer to human beings in our film, and that's what the quirkiness about the film. Because प्यार होना है, अगर ऐसा प्रॉपर शिद्दत वाला प्यार कि मेरी इमोशंस नहीं जा रही हैं, तो फिर थोड़ा तो इंसान जैसा होना पड़ेगा। I mean, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कई साल पहले आपके बचपन में, मेरे बचपन में, तुम्हारे बचपन में हमने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, रिमेंबर मिस्टर इंडिया? तो उसके अंदर तो वो ब्रेसलेट था जिसको पहनते ही आदमी इनविजिबल हो जाता है। ये तो मतलब अनिल सर की जवानी की फिल्म है, वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स, और वो सबको अच्छी लगी थी यार। किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे थे ये इनविजिबल कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, वन थे डॉक्टर कुमांशु, है ना, ऐसे ही कुछ था। तो उन्होंने बोला कि इनविजिबल हो जाता है तो मान गए। सो क्या होता है फिल्म के अंदर कोई चीज़ जब आप देखो तो वहाँ कन्विंसिंग करनी चाहिए, और फिल्मों में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप जिंदगी में हम नहीं देख सकते। तो ये तो आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, बट उसको अगर हम वही दिखाएंगे जो आप ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा। वी हैव टू शो यू समथिंग जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। और इस फिल्म में अच्छी बात ये है कि इट इज प्लेस्ड इनटू अ सिचुएशन व्हिच आई फाउंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि मुझे लगा कि अच्छा फैमिली सेटअप में लव स्टोरी में इस चीज़ को डाल दिया गया है। तो आई थिंक वही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अब वो आपको कितनी अच्छी लगती है, या तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाएगी या कन्विंसिंग लगेगी, वी नो दैट, इसलिए जब हमने ये फिल्म शुरू की वी न्यू दैट वी हैव टू कन्विंस यू अबाउट दिस, तो हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट, दैट्स व्हाई इतने सारे सवाल थे एंड ऑल दैट, हम दोनों के बड़े सारे सवाल थे। लेट्स होप कि हमने जो सवाल पूछे हैं वो शायद आपके सवालों का भी जवाब फिल्म के अंदर टाइम तक दे देंगे। हाय शाहिद, दिस इज सौरभ। जो आपने बताया कि जो मंगाती हैं वो वेंडर से मंगाती हैं पहली बार, क्या मैं समझा वो Vendors. He just vendors cake जो मंगवाती है, there's a place called vendors. आपको पता है कहाँ से मंगाती है? सिटी उसका बहुत अमेजिंग है। Oh. और दूसरा लेकिन हाउ डू आई नो यू नो व्हिच केक आई हैव ईटन? Because that's the best one, the strawberry in vanilla. चॉकलेट टोल्ड अस, यार वो बहुत सारे केक बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। अच्छा आप पूछना और फिर बता। मैं फाइंड आउट करके सेवा के प्रमोशन में आपको बताऊँ। एंड वी ऑल मिस यू फ्रॉम बड़े बिकॉज़ सब आपको मिस करते हैं फिल्म में और सब आपकी मुझे लगते हैं। एंड माय क्वेश्चन इज दिस कि शायद देयर आर सो मेनी गुड रीजंस टू लव गर्ल लाइक कृति, बट 3 गुड रीजंस टू लव अ एआई रोबोट, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बताएं, हम ये लेंगे 3 reasons to love a robot। आप उसमें ऑन ऑफ बटन है, दैट्स माय फेवरेट रीजन। ज़्यादा अगर कुछ इशू हो रहा है तो ऑफ कर दो, आई लव दैट। हाँ, सेकेंडली मैं रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, अगर मुझसे ही प्रोग्रामिंग में गलती होगी मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। और नंबर 3 नया मॉडल ले सकते हैं अगर बोलोगे। काफी सारे रीजंस मेरे वाले जो मैंने बोल दिए, बट आई थिंक मतलब कुछ भी कर सकती है सिद्रा। शी कैन मल्टीटास्क व्हिच आई कांट, आई जस्ट फील लाइक आई कांट मल्टीटास्क विद थिंग्स, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कंटेंट नहीं होती, जब बोलना है तो बोलेगी, जब बोलना है बात करो बात करेगी। सो या शी कैन गो अकॉर्डिंगली, एंड उसको बताना पड़ेगा कि ये जोक है, बस वो ही करता है उसका। दोनों हाथों से खाना बना लेती है। हाँ वो तो सब कुछ कर सकते हैं, हाँ खाना बनाना क्या, शी कैन लाइक डू एवरीथिंग इन द हाउस, so she can really be great. हाय हेलो शायद हेलो प्रदीप, आई एम अंकित दिस साइड फ्रॉम इंडिया। और मेरा पहली बात तो टीवी वॉच के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और दिल्ली अब आ रखे तो फिर ये बोलना चाहूँगा ट्रेन में मौज तो कर दी है और नो फैक्ट को भी मौज करी है। मेरा सवाल ये था, पहली बार आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो ऑन स्क्रीन, और कैसा एक्सपीरियंस था
और कृति मैं आपसे पूछना चाहूँगा शिफ्रा का कैरेक्टर आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था उसको प्ले करना? अच्छा, अलग-अलग क्वेश्चन आपने सारे एक ही बार में पूछ लिए। एक ही बार में। तो मतलब जिंदगी में आग लगाई कि नहीं लगाई? हाँ हाँ, मौज करती मैं तो बोलते थे बेटे मौज कर दी। कौन सा क्वेश्चन पूछ लिए? चार पूछ लिए एक बार में? हाँ, शिफ्रा वाला और साथ में फ्रेंड का काम करती है। सारा हाँ, सारा का सारा। सारा का सारा, ओके। साथ में हाँ, एक्चुअली हमें कुछ शायद 7 या 8 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ शायद हम साथ में काम करते और फिर वो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और एक सही फिल्म होती है। एंड I really feel that we work with each other now at a very correct time, because I am also now I've learned my own craft. I'm way more confident as an actor now. तब मैं आके इनके सामने तो शायद बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती। अब I was still confident enough to like hold my own and actually play off him. And I think he's an incredible. He's back with the picture which we had. पूरी पिक्चर में बहुत रिस्पेक्ट मिली है। Just play that song, now play that song. Just play that song. No, but please, no, he's my senior actor, guys. We will not laugh at all these things, okay? You have to be very respectful. But he's an incredible actor, and I think whenever you have someone who's just performing so well in front of you, you just feel like you're getting better at what you do. And that's what happened with him. And I feel like I like the fact that even after being in the industry for 20 years, I like the fact that he's always rediscovering himself. I like कि ये set पर हर scene के लिए बहुत excited होते हैं। Basic से basic scene जो है, उसे magical कैसे बनाना है, उसको कुछ और कर सकते हैं हम। अपना shoulder है, मेरा shot है, तब भी जाके देखेंगे कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। So I like that. I like the curiosity. I like the excitement. And of course, he's a fabulous dancer. So he's probably the only one I was very scared to dance with. But more than anything, I feel like we really vibe. Like I think कभी-कभी होता है ना कि आपको chemistry create करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप होती है, पता नहीं कैसे। And ऐसा नहीं कि हम दोस्त कैसे बने। So yeah, had a great time with you and your Punjabi music group. Who's the cover? सेम क्वेश्चन का जवाब वो सब बता चुकी हैं आपको, बट यस मैं इतना जरूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है, मुंबई में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने यही कहा था कि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद कृति, क्योंकि उनका काम पिछले कुछ सालों से बेहतर होता जा रहा है। और कभी भी एक फ्रेश कोलैबोरेशन जो होता है उसके अंदर एक फ्रेश पोटेंशियल होता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारा कोलैबोरेशन पहली बार इस फिल्म में हुआ, क्योंकि इस फिल्म को एक फ्रेश केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस जॉनर के लिए। अब जो हमने ये फिल्म कर ली है और जब भी आप लोग देखेंगे, अगर लोगों को अच्छी लगी, अगर हमारा काम पसंद आया तो देन इट गिव्स अस मोर फ्रीडम टू कोलैबोरेट अगेन टुगेदर और फिर से हम कुछ करें। लेकिन सो फार पीपल सीम टू रियली लाइक अस एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज फिल्म तो इन्हीं दो कैरेक्टर्स के इमोशंस बने, मेरे इमोशन और उसके रिएक्शन का बेस है। You know, and of course it matters a lot जब आप एक लव स्टोरी देखते हैं, उसमें गाने होते हैं, रोमांस होता है, तो दिल को अच्छा लगना चाहिए। उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या वो है या नहीं है। So I just feel very happy to work with her as an actor, as a friend, as a co-music lover, or as you know, like just a contemporary whose work I've enjoyed, you know. So and now I think we're friends, and yeah, I'm just looking forward to more work with her. It was great. हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, जरूर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।